पहले हमने वीडियोस में देखा मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन इन ह्यूमंस, और आज हम देखेंगे रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। रेस्पिरेशन देखने से पहले जो लास्ट वीडियो थी उसमें स्पिंक्चर मसल्स लिखा हुआ था। स्पिंक्चर मसल, इट इज नॉट स्पिंक्चर मसल, इट इज स्फिंक्टर मसल्स which regulates the entry and exit of food in the stomach. So please correct it. Now starting with the respiration. What is respiration? Respiration is the process in which the food is oxidized to yield energy. हम खाना खाते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है। अब वो खाना ऑक्सीडाइज होता है, फूड इज ऑक्सीडाइज टू yield energy. Two types of respiration are there: aerobic respiration and anaerobic respiration. Aerobic respiration में we require oxygen for respiring. As compared to anaerobic respiration, more energy is released, and here the end products are carbon dioxide and water. The molecule of glucose in the presence of oxygen reduced to carbon dioxide and water with the energy. Energy is released in the form of ATP. Here the energy is released in the form of ATP. Example: human and animals. In anaerobic respiration, oxygen is not required. Less energy is released as compared to aerobic respiration, and the end products are ethanol and carbon dioxide. The molecule of glucose is reduced in the form of ethanol and carbon dioxide. What is common in aerobic and anaerobic respiration? In both the process, कार्बन डाइऑक्साइड तो रिलीज हो ही रही है। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं इसमें बैक्टीरिया, ईस्ट, ये सारे एनारोबिक रेस्पिरेशन शो करते हैं। हमारी बॉडी में भी कहीं कहीं पर एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। वो कहाँ होता है? हमारे मसल्स में। हर टाइम नहीं होता है, लेकिन जब हम बहुत सारी एक्सरसाइज कर लेते हैं या बहुत सारा रनिंग कहीं से दौड़ कर आ रहे होते हैं तो क्या होता है, हमारी मसल्स में पेन होने लगता है। वो पेन क्यों होता है? क्योंकि हमारे मसल्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, और जो पेन होता है हमें या जो क्रैम्प्स होते हैं वो होते हैं लैक्टिक एसिड की वजह से। अगर मसल्स में एक्सरसाइज के टाइम पे लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हुआ तो हमें पेन, हम एक्सपीरियंस करेंगे पेन को। इन अवर बॉडी एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द मसल at the time of rigorous exercise, and as a result lactic acid is produced. Because of this lactic acid we may experience cramp and muscular pain which was relieved when we take rest. और ये सही भी हो जाता है नॉर्मल, अगर हम कोई दवाई नहीं ले रहे हैं या मेडिसिन नहीं ले रहे हैं तो ये ठीक भी हो जाता है अपने आप ही जब हम रेस्ट कर लेते हैं। तो वाटर एनिमल यूजेस ऑक्सीजन डिजॉल्व इन द वाटर फॉर रेस्पिरेशन। जो एनिमल्स हैं जो पानी में रह रहे हैं वो डिजॉल्व ऑक्सीजन के फॉर्म में यूज करते हैं ऑक्सीजन को सांस लेने के लिए। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर इज वेरी लेस, सो द रेट ऑफ ब्रीदिंग इज हाई और फास्टर। वी कैन से दैट। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो पानी में जो एनिमल्स रह रहे हैं या जो जानवर पानी में रह रहे हैं उनमें ब्रीदिंग रेट हाई क्यों होता है? ऑक्सीजन का अमाउंट जो पानी में डिजॉल्व होता है वो एज कंपेयर टू एयर में जो ऑक्सीजन है उससे बहुत कम होता है। तो क्या होता है कि उनका रेट ऑफ ब्रीदिंग बढ़ जाता है। अब ह्यूमंस में रेस्पिरेशन कैसे होता है, मैकेनिज्म क्या है रेस्पिरेशन का, हाउ ह्यूमन रेस्पायर? तो देयर आर सर्टेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स: नॉस्ट्रल, विंडपाइप, लंग्स, ट्रैकिया. These are the respiratory organs which help humans to respire. Now, how these organs help human to respire? First is nostril. There are fine hair and mucus present in the nostril which help
in filtering the air. The air passes from the nostril where the fine hairs are present. Next is windpipe. It is also known as trachea. It helps the ring of cartilage present on it to prevent it from collapsing. Bronchs. It takes the air inside the lungs. There are certain balloon-like structure which are known as alveoli, which are connected through these bronchs, and they take air inside the lungs through bronchs. It divided and redivided many times, and its fine branches takes the air to the alveoli. Lungs are the exchange of gases. It take place inside the lungs. Lungs के अंदर क्या होता है? Exchange of gases होता है. जैसे अगर हमें ऑक्सीजन की जरूरत है तो वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होगा लंग्स के अंदर. एल्विलाई में क्या होगा? एल्विलाई आर द बैलून लाइक स्ट्रक्चर. दे प्रोवाइड द सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस. दे आर रिचली सप्लाइड और हाईली सप्लाइड विद द ब्लड वेसल्स. बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं. दिस वॉज द डायग्राम शोइंग ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. इजीली ड्रॉ करके बताया हुआ है. फर्स्ट जो एरो है वो आपको नेसल पैसेज दिखा रहा है. दिस वॉज द नॉस्ट्रल कैविटी और दिस वॉज द नेसल पैसेज एंड दिस इज द माउथ कैविटी. क्या हो रहा है यहाँ से? लंग्स, ये जो ट्रैकिया है ये लंग्स में डिवाइड कर रही है. ये डिवाइड हुआ ब्रोंकस में और उसके बाद डिवाइड होता गया फाइन एल्विलाई में डिवाइड हो गया. ये जो स्ट्रक्चर है ये एल्विलाई है, इसको यहाँ रिप्रेजेंट किया है और ये नीचे डायफ्राम दिखाया हुआ है. ये स्ट्रक्चर जूम करके बताया हुआ है. एल्विलाई का स्ट्रक्चर है जहाँ पर अगर एयर एंटर करती है तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का चेंज होता है यहाँ पर. और ये ब्लड वेसल्स से जो इसकी वॉल्व होती हैं या दे आर हाईली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स. द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज हीमोग्लोबिन विच कैरी द ऑक्सीजन. अब ऑक्सीजन को कैरी, ऑक्सीजन हैज टू अटैच विद समथिंग. सो हीमोग्लोबिन इज द पिगमेंट which is of red color which carry oxygen. Carbon dioxide is transferred mostly in the dissolved form in the body. अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बॉडी में डिजोल्व फॉर्म में ही होता है. This was the diagrammatic representation of respiration. What happened? We inhale the air and it goes to the lungs and rib cage expand because of because the muscles in the rib they contracts and the diaphragm it moves down and contracts. This means we are inhaling the air. This is the process of inhalation. The first diagram is showing the process of inhalation. This was the diagram showing the process of inhalation and this was the diagram of showing the process of exhalation. Exhalation. Here we have to exhale air. We exhale out air with the mouth. Here what happened? The rib cage gets smaller as the ribs muscles relax and the diaphragm relax and moves upside. अब इतना सारा जो हमने पढ़ा इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं. लास्ट 2 वीडियोस में भी हमने बहुत सारी चीज़ें कवर की थी और आज भी हमने बहुत सारी चीज़ें कवर की हैं. तो इसमें क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं जो एग्जाम्स में कई बार पूछे जाते हैं. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मोड ऑफ न्यूट्रिशन? सो वी कैन से दैट इन ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन the organism did not depend on any other organism to make their food. They synthesize their food themselves. But in heterotropic nutrition, the organism depend on some other organism to take food. Saprophytic nutrition and parasitic nutrition. Here what happened? The organism has to feed on. In saprophytic nutrition, the organism has to feed on dead matter, and in parasitic mode of nutrition the one organism get energy और the other has to be, जिसको नुकसान हो जाएगा हम कह सकते हैं. एक
एनिमल को नुकसान होगा तो दूसरे को फायदा होगा, और दोनों ही लाइव होंगे इस केस में। एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन हमने आज ही पढ़ा हुआ है कि एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन रिक्वायर होती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन रिक्वायर नहीं होती है। दोनों की इक्वेशन लिख सकते हैं हम, एंड प्रोडक्ट्स में डिफरेंस बता सकते हैं। एरोबिक में जो होता है वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होगा, और एनारोबिक में इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। इसमें वाटर रिलीज नहीं होता है। जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा इसमें वाटर रिलीज नहीं होगा। स्टेप्स विच आर इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस, फर्स्ट द लाइट, क्लोरोफिल जो होगा वो लाइट को ट्रैप कर लेगा, फिर वो अपना आगे का प्रोसेस करेगा। कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक हो जाएगा जो कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, और वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग होगी। एक्सप्लेन हाउ द स्टोमेटा गेट ओपन एंड क्लोज, ये भी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। व्हेन द वाटर एंटर्स इन द गार्ड सेल स्टोमेटा में, तो स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। ये डे टाइम में ओपन होते हैं और नाइट टाइम में ये क्लोज हो जाते हैं। नाइट में ये स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। व्हाट इज द फंक्शन और सिग्निफिकेंस ऑफ HCl जो प्रेजेंट होता है, क्या फंक्शन है HCl का? जो एंजाइम्स होते हैं कुछ, वो एसिडिक मीडियम में ही एक्टिव होते हैं, तो उनको एक्टिव कराता है एक तो, और खाने के साथ साथ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे स्टमक में जाते हैं उनको भी ये किल कर देता है। सलाइवा का क्या फंक्शन है? फूड को वेट करने के लिए यूज में आता है। हीमोग्लोबिन का क्या फंक्शन है? इट यूज टू कैरी द ऑक्सीजन। हाउ डज लिवर हेल्प इन द डाइजेशन, लिवर कैसे डाइजेशन में मदद करता है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स करता है थ्रू बाइल। इमल्सिफिकेशन, ये ठीक से नहीं लिख पा रहे हैं यहाँ पे, कोई बात नहीं। इमल्सिफिकेशन में हेल्प करता है। व्हेन एंड व्हाई डज द एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन आवर बॉडी? इसका तो अभी आंसर देखा हमने, मसल्स में होता है ड्यू टू लैक्टिक एसिड एट द टाइम ऑफ रिग्रेस एक्सरसाइज। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियोस भी जल्दी मैं अपलोड करूँगी।